What is spirituality for you? स्पिरिचुअलिटी इज गुडनेस इन एक्शन। आपकी लाइफ है वो आपके माइंड से निकल के आती है। जो आपका माइंड का कंटेंट है वो आपकी लाइफ का कंटेंट बनता है। ये सोचना कि मैंने आज विजन किया और कल मैं कंपनी बिल्ड कर लूँ, तो वो अनफेयर एक्सपेक्टेशन। विजुलाइजेशन इज अ टूल जो आपके ब्रेन को चेंज करने में, अपग्रेड करने में, रिवाइव करने में हेल्प करता है। Hi everyone, welcome to the first ever conversation powered by NeoYug. Now I'd like to take a moment here because this is our first ever podcast, our first ever conversation, and that's the reason it's very very special to us. लेकिन इसका पर्पस क्या है? लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हमें एक पर्सपेक्टिव देके जाती हैं। कभी कभी those are silent little nudges, sometimes they can be shocking, but eventually you actually meet something which makes your inner consciousness flow and accept it, right? इसी पर्पस के साथ ही आपको जितने भी ज़्यादा हम पर्सपेक्टिव्स दे सके वो आपको प्रेजेंट करने के लिए we have come up with these conversations, and I'm so excited because the first ever guest on this podcast, because first is always the first time, right? So the first ever guest that we have today is Avinash Anand Singh. और उनकी लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स इतनी लंबी है कि मुझसे तो याद नहीं हुई थी, सो ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस. सो अविनाश इज एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच, serial entrepreneur, a former member of Forbes Coaches Council, one of India's leading coaches on growth mindset and subconscious mind, working in the area of connecting science and spirituality, certified coach from International Coaching Federation, certified happiness coach from Berkeley's Institute of Wellbeing, certified in positive psychology from Harvard Health Publishing, and many other certifications. He works with top companies, senior executives, entrepreneurs running million-dollar ventures as a coach to help them elevate their performance. He's the founder of Blue Dot Transform Consulting Pune and has conducted more than 350 plus sessions in more than 12 cities in the last 9 years across 5 countries. Avinash, this is way too much to digest for anyone. So in some ways, first of all, welcome to the podcast. Thank you so much for being the first ever guest. My pleasure. And out of all this, aap kya ho exactly? What do you do? Please tell our audience. Thank you so much for inviting, Natasha. It's a pleasure to be here and always special to be in the first podcast. So deep within me, there is a very burning curiosity which is there to learn, to understand, to discover, to explore the dimensions of human potential, right? I think today we are at a stage where science is decoding a lot of things which our spiritual people talked about, our ancient wisdom talked about, right? So I think we are very lucky to live in a time जहाँ पे कि हमें इतना कुछ चीज़ें देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, and it has always fascinated me and my journey of life. So I thought, can I use this knowledge and जो tools है, जो research आ रही है, to help people discover or uncover their true potential, Right. which then translates into they living a more fulfilled life, more happy life, more achieved goals achieved, dreams achieved kind of life, not just regret and suffering and unfulfilled. So this leads me to learn and understand and grow and do this work. Yeah, absolutely. So यहाँ पे creative visualization कहाँ से आया? Especially I think बहुत सारे हमारे audience को नहीं पता होगा कि creative visualization होता क्या है. So just in layman terms, if you can tell everyone, what is creative visualization? So, I think we are one of the most, in fact, we are the most evolved creation in the ecosystem, right? Right. Doesn't mean we are the superiorest one, but we are evolved because if you look at animal and plant, they cannot, they do not have the faculties which we have, like thinking and intelligence and reasoning, So I think, what life has given us is a beautiful gift of visualization, of creative visualization, which enables us to conceive a future which is not existing right now. Okay. It enables us to see a future which is not present, but if we can see the future with the eyes of our mind, we can bring that into reality. And that's what leads us to एक नया लाइफ जीने में, एक नई लाइफ बनाने में, एक नया लाइफ क्रिएट करने में. तो मेरे लाइफ में जब मैं एक स्कूल टाइम में था,
and not a very studious guy, just managed to get passing marks. So visualization became a very powerful tool for me कि मैं उस future को conceive कर पाऊँ. Because present reality is difficult. Sometimes you are not in the right place. चीज़ें difficult आपके लिए. But even in those difficult times, can you pause and can you really let your mind go beyond boundaries and imagine if things can work out for me, how those things would be. So I think visualization played a very important role in my life to जिसने मुझे एक purpose दिया, एक dream दिया, and I kept on holding to that dream. वो मैंने उसको पकड़ा कि यार मुझे यहाँ पहुँचना. I want to be the best in my field. तो I think visualization मेरी लाइफ में बहुत ही important role play कर रहा है. काफ़ी मुझे उससे रिजल्ट दिखी है और आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली इट हैज़ हेल्प मी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ मी. तो या ओके, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं. एंड व्हेन आई से थोड़ा सा पीछे, एज इन थोड़ा आपके बचपन में जाते हैं. जाए हम सबकी क्रेजी स्टोरीज होती है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, किसी को नासा ज्वाइन करना है, साइंटिस्ट बनना है. आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो वुड वांट टू बी समवन बैक इन योर चाइल्डहुड. सो तब आप क्या बनना चाहते थे? लाइक व्हाट डिड यू विजुअलाइज व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, and how closer it is to your reality right now? You know, I think starting में सच बोलूँ तो क्लैरिटी थी नहीं मुझे. Class 5, Class 8, Class 10, 12 तक I was clueless. Even till graduation, I think there's no clarity कि करना क्या है. But somehow एक मुझे क्वेश्चन दिमाग में था कि यार बहुत लोग लाइफ में जो टॉप पे लोग हैं, जो वर्ल्ड बेस्ट पीपल हैं इन देयर फील्ड, उनमें क्या डिफरेंट है जो वहाँ पहुँचे हैं और बाकी लोग नहीं पहुँचे वहाँ पे. मासेस नहीं है वहाँ पे, मासेस एवरेज लाइफ जी रही है. तो उनमें क्या है जो उन्होंने वहाँ वो अचीव कर गए, उस रिजल्ट को अचीव कर पाए. तो कहीं ना कहीं आई थिंक ग्रेजुएशन के आसपास मैंने एक चीज़ डिस्कवर किया कि मुझे लोगों को हेल्प करने में बहुत मज़ा आता था. मतलब मेरे लिए किसी को मोटिवेट करना, किसी को हेल्प करना वॉज अ वेरी फुलफिलिंग टास्क. तो मैंने कहने का एक विजन देखा था कि यार मुझे लोगों को हेल्प तो बहुत करना है. किस वे में करना है, कैसे करूँगा, वो क्लैरिटी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट. पर लोगों को हेल्प करना है, तो एक इनर ड्राइव बहुत क्लियर था. और सेकेंड ड्राइव था कि कुछ ऐसा करना है कि यार लोग जाने दुनिया में कि भाई ये बंदा एग्जिस्ट करता है. तो ये एक दो चीज़ें दिमाग में क्लियर थी. अब उसमें मुझे मालूम था कि विजुलाइजेशन होता क्या है, आप विजुलाइज करो, ब्रेन में क्या इम्पैक्ट है, आपके बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है. बट ये एक दो चीज़ें दिमाग में बहुत क्लियर बन चुकी थी कि यार लाइफ में कुछ तो करना है कि जब मैं वापस देखूँ लाइफ को, यार लगे कि यार मैंने कुछ तो लाइफ जिया और लोग बोले कि यार इस इंसान ने मैं लाइफ टच किया. तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे लिए, एक वेरी वेग पिक्चर को कंसीव करना कि मैं एक लाइफ ऐसा जीऊँ जहाँ पे मैं लोगों को लाइफ को इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ और अपनी लाइफ को भी, अपने जो मेरे गोल्स थे, गोल्स क्या थे कि रिच बनना है, घूमना है, पैसे कमाने, ना नेम एंड फेम, वो गोल्स था जो सभी का रहता है. तो आई थिंक दैट वाज इनिशियल फॉर मी द विजुअलाइजेशन व्हेन आई स्टार्टेड. या सो इन फैक्ट उसी क्वेश्चन पे व्हाट आपने जो पॉइंट आउट किया, बचपन में हम सबको होता है ना कि गो फॉर द वर्ल्ड टूर, या ये गाड़ी लेनी है, इस सेलिब्रिटी से मिलना है, ये करना है, वो करना है. मे बी वी डिडंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू बी, बट वी हैव अ फेयर आइडिया. ऐसा कुछ आपने विजुअलाइज किया व्हिच टर्न्ड रियल? यू नो, आई थिंक जब मैंने ग्रेजुएशन से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, राइट, तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जब मैं था तब मैंने ना इस कॉन्सेप्ट से मैं रूबरू हो पाया. जब समझा, मैंने एक बुक थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, और उस बुक में लिखा था कि जो आपकी लाइफ है वो आपके माइंड से निकल के आती है. जो आपका माइंड का कंटेंट है वो आपकी लाइफ का कंटेंट बनता है. और जो हम दिन भर सोच रहे हैं, जो हम बिलीव कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा खुद का थॉट नहीं है. वो कहीं ना कहीं सोसाइटी ड्रिवन, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने आपको कुछ बोला है, आप पे कंक्लूजन ड्रॉ किया है, आप पे परसेप्शन बनाया है, वो सारे थॉट्स हम पिकअप करके रखते हैं. तो ग्रेजुएशन जब मैंने बुक पढ़ी कि भाई आपके पास एबिलिटी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हो जो आपकी लाइफ में चीज़ों को बदल सकता है, तब मैंने ये चीज़ों को करना स्टार्ट किया. और मुझे याद है पहली चीज़ जब मैंने किया था कि जब फर्स्ट ईयर में था कि मैं बोला इसको मैं ट्राई करता हूँ. तो मेरे जो कॉलेज में था बीकॉम में, हमारे कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन था इंग्लिश का, और मेरे इंग्लिश में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, काफ़ी वीक था इंग्लिश, बिकॉज कभी हमने इंग्लिश पे ध्यान दी नहीं थी. तो मैंने इमेजिन करना स्टार्ट किया एक हफ्ते पहले कि यार मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इंग्लिश का, और मैं पहुँचा वहाँ पे, टीचर ने बुलाया स्टेज पे, मैं गया हूँ और मैंने बोला एक टॉपिक के ऊपर. मुझे टॉपिक अभी भी याद है, उन्होंने बोला था कि टॉपिक था कि दोज हु यूज आर्म्स एंड बॉम्ब्स आर दे, इज दैट रॉन्ग, और दोज हु मेक weapons are they more are they wrong or something like that.
सो मुझे ये टॉपिक मिला था, तो मैंने ना 1 हफ्ते प्रिपरेशन किया मेंटली कि मैं जा रहा हूँ, दे रहा हूँ, लोग बच्चे क्लैप कर रहे हैं, मुझे 8 मार्क्स मिला है 10 में, मैम अप्रिशिएट कर रही है। और 1 हफ्ते के बाद जब वो प्रेजेंटेशन आई, तो जब मैं उठ के गया, मुझे लगा कि मैं मूवी रिप्ले कर रहा हूँ माइंड में। एग्जैक्टली जो चीज़ें हुई सेम टू सेम जो मैंने इमेजिन किया था। एंड आई गॉट द मार्क्स, गॉट द अप्रिसिएशन, मैडम से बच्चों ने क्लैप किया जो मैंने जिससे विजुअलाइज किया था। दैट वॉज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू। मुझे लगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है, इट्स जस्ट नॉट अ थ्योरी। तो आई थिंक दैट वाज स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू एक बड़े लेवल पे था, वो था मेरे MBA में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में था। प्रोफेसर MS पहले मेरे मेंटर थे, साधना सेंटर फॉर मैनेजमेंट पुणे में हमारा कैंपस था। और वहाँ पे मैंने विजुअलाइज किया था कि क्या मैं इस कॉलेज से बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लेके जा सकता हूँ, विच वॉज अ लाख रुपीज़ कैश प्राइज, एंड आउट ऑफ 225 स्टूडेंट्स थे बैच में हमारे। तो मैंने करीब 1 साल उस पर विजुअलाइज किया था कि यार मैं बेस्ट का अवार्ड मुझे मिल रहा है, और आई इम्प्रूव्ड, आई बिकम बेटर, आई एम सो कॉन्फिडेंट। एंड अगेन जब कॉन्वोकेशन आई, तो एग्जैक्टली एवरीथिंग हैपन एज पर द स्क्रिप्ट व्हिच आई इमेजिन। इट वाज लाइक कंप्लीटली चेंजिंग। तो 2 चीज़ें हुई थी लाइफ में बड़े लेवल पे, एंड दैट्स वेयर आई थिंक वो रास्ता खुल गया एक तरफ कि यार ये चीज़ तो कुछ एग्जिस्ट करती है, और हमें फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि क्या मैं इसमें और डीप जा सकता हूँ। जब मैंने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया और रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो देखा कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है, जो दुनिया के बहुत जो टॉप के लोग हैं, बेस्ट पीपल हैं, सक्सेसफुल वो हैं हर फील्ड में, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर बात की है, यूज़ किया है। That's how my life took a turn to come to this side, जहाँ पे मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया। But that also talks, I feel, जो आपने example दिया, that also talks a lot about your dedication towards visualization. I mean, I'm giving you an example, okay? The kind of person I am, if I have to visualize something straight for a week, forget about a month, I'll get bored. That's a problem with me कि मैं एक ही चीज़, एक ही सीन बार बार नहीं अपने दिमाग में रिपीट कर सकती, because मैं बोर हो जाती हूँ. Any hack that you'd like to tell for people like us who get bored? Anything? बहुत बार होता है ना कि जो हम चीज़ें विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं, जो हम चीज़ें आउटकम रखते हैं अपनी लाइफ में, शायद वो हमारा ना बहुत डीपली वहाँ इंटरेस्ट होता नहीं है, राइट? मुझे ये लगता है यदि आपका हार्ट कनेक्टेड है उस गोल से, जो चीज़ आपको चाहिए, आपके हार्ट में एक डीपर कनेक्शन है और वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप सस्टेन करते हो, आप परसिस्ट करते हो। यदि आप तुरंत उस चीज़ को छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं हमें देखना, रिफ्लेक्ट करना है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। यदि चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं माइंड को फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे कि अरे क्योंकि दुनिया में लोग चीज़ कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, सब लोग घूम रहे हैं, मैं भी घूमूंगा, बट क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? इज़ दैट माई वैल्यू, दैट कि मुझे ये चीज़ चाहिए? तो मुझे लगता है यदि आपने वैसी कुछ चीज़ ढूंढी जो आपसे, आपके हार्ट से कनेक्टेड है, तो आप जनरली बहुत लॉन्ग टर्म तक उस पर आप परसिस्ट करते हो, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बार हमारे दिमाग में ये भी होता है कि हम कुछ चाहिए होती चीज़ें और हम विजुअलाइज करते, हमें लगता है कि आज कर रहा हूँ, कल हो जाएगी चीज़ें, यू नो। तो बहुत बार अनफेयर एक्सपेक्टेशंस लोगों को रहते हैं, बिकॉज ये टूल वर्क करता है, पर इसका अपना एक टाइम फ्रेम है, एक टाइम पीरियड है, और वो चीज़ को समझना डीपली कि इसका साइंस क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार अनफेयर एक्सपेक्टेशन लोगों के रहते हैं कि यार आज कुछ करूँ, कल ही हो जाए, और हुआ नहीं, फिर लोग कहीं ना कहीं मेंटली वो लिंक कर लेते हैं, यार चीज़ें वर्क करती नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे लगती है प्रॉब्लम आती है लोगों के। So what's an average timeline? अगर कोई विजुअलाइज आज करना शुरू करे, आप क्या बोलोगे, कितना टाइम लेके चले? तो डिपेंड ऑन आपका गोल क्या है, मतलब आपको चाहिए क्या। यदि आप देख रहे हो एक लाइफ में एक कंपनी बिल्ड करना, वो एक दिन में होगा नहीं। तो भी प्रैक्टिकल आप विजन देख सकते हो, आप उसके लिए वर्क कर सकते हो, पर वो आपको साल लगेंगे उस चीज़ के लिए। ये सोचना कि मैंने आज विजन किया और कल मैं कंपनी बिल्ड कर लूँ, तो अनफेयर एक्सपेक्टेशन, वो होगी नहीं चीज़ें, राइट? तो आई थिंक डिपेंड ऑन कि आपको चाहिए क्या, उस पर डिपेंड करता है। बट सेम टाइम एक विजुअलाइजेशन जब आप ये करते हो कि आप एक बेटर इंसान बन रहे हो, आप एक मोर पॉजिटिव इंसान बन रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ रही हैं, आपके अंदर डेडिकेशन है, रेजिलियंस है, आप कॉन्फिडेंस हो, कन्विक्शन है, यदि आप यही करते हो प्रैक्टिस करना, तो आई थिंक विद इन फ्यू वीक्स यू स्टार्ट सीइंग द चेंज। आपको नज़र आएगा कि आपका थॉट, जो एक डिफ़ॉल्ट थॉट पैटर्न्स थे, वो चेंज हो चुके हैं, आपकी इमोशन चेंज हो चुकी है। तो पर्सनल चेंज में बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। जब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है, बड़ी चीज़ों को उसमें टाइम लगती है, बट सेम टाइम कोई इंसान है जॉब कर रहा है एंड दे वांट टू हैव बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर देम, उनको एक जॉब चाहिए अच्छा, या कोई एंटरप्रेन्योर है जिसको कुछ प्रोजेक्ट मैनिफेस्ट करना है, तो यदि आपने सही से प्रोसेस किया, तो आई थिंक सम टाइम विद इन वीक्स, अ वीक और सो में आप यू कैन सी सम रिजल्ट्स हैपनिंग। मतलब इफ द इंटेंशन इज स्ट्रॉन्ग, इफ यू हैव डन इट प्रॉपर्ली, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको बहुत सारे रिजल्ट नज़र आ सकते हैं,
राइट. बट आई थिंक इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस प्रोसेस को समझना है, इस स्किल को आपको लर्न करके मास्टर करना है, तभी उस चीज़ को आप प्रॉपरली बहुत अच्छे से कर पाओगे. Right. But you know what? You actually just gave me an insight, like within this conversation, because आपने इतने मुझे लगता कि इससे बेटर मैं समझ पाती that when you're looking for a goal that is maybe 5 years long, उसमें of course it takes time because we are thinking about the outcome कि मुझे 5 साल बाद ये बनना है, लेकिन वो बनने के लिए मुझे मेरे अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, क्या स्किल डेवलप करनी है, क्या क्वालिटीज़ चाहिए. अगर मैंने वो सेट डेवलप कर लिया, it's automatic that I'll go towards that, right? So what you said it's easy because I can see the result in a few days or a few weeks. When I see that result, that'll keep me motivated कि मैं वो long term vision भी अपना visualize करूँ. And because I've already had the skill set, तो वो automatically उसी direction में जाएगा. Wow. I mean, seriously, this was profound for me. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. But also, talking on this, I feel बहुत सारे लोग ना underplay करते हैं. And when I say underplay, I feel, और आप शायद resonate करोगे कि everyone visualizes, right? शायद हम ये visualize कर रहे हो कि कल रात को dinner में क्या बनेगा, मुझे weekend पे कहाँ जाना है, blah blah blah. हमें नहीं पता कि ये कितना powerful है, so हम we just keep imagining things like that, right? कि maybe मुझे शायद इस बार increment मिल जाएगा, maybe I'll open this up. When actually the possibility is limitless. I can visualize anything that I want. I can visualize that I have a company that has its branches across all the continents. I can have homes in every continent, but we underplay, right? So people who underplay, मतलब मुझे लगता है visualization फिर भी एक next step है जहाँ पे आप उस चीज़ को देख पा रहे हो. I feel बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें देखना क्या है. वो ना बहुत छोटा उसमें सिमट के रह जाते हैं, right? तो anything that any technique or maybe any hack, any insight that you have for people like that? देखो, मुझे लगता है कि हमारे माइंड का फंडामेंटली 2 एबिलिटीज़ हैं, बहुत पावरफुल एबिलिटीज़ है. पहला माइंड का एबिलिटी है टू कंज्यूम, राइट. वी कंज्यूम थिंग्स, वी कंज्यूम इंफॉर्मेशन, थॉट्स ऑफ अदर पीपल, वी कंज्यूम कंटेंट, वी रीड बुक्स, मूवीज, न्यूज़, ये सारा कंजम्पशन पैटर्न हमारा है, राइट. आप तो ये एक पहला पैटर्न हमारा माइंड का हुआ, कंजम्पशन. दूसरा जो माइंड का एबिलिटी है वो है क्रिएशन, कि आप अब क्रिएट क्या कर रहे हो, थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हो, एक्शंस क्या क्रिएट कर रहे हो, आप चीज़ें क्या डेवलप कर रहे हो, आप बिजनेस में हो, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कस्टमर के लिए, आप कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, बुक क्रिएट कर रहे हो, म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो. सो क्रिएशन इज सेकेंड एस्पेक्ट. आई थिंक बहुत बार हमें ये समझना है कि जो हमारा फर्स्ट एबिलिटी है कंजम्पशन का, वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है. जैसे कोई इंसान रॉटन फूड नहीं खाता है, जो खाना हमारा वो ख़राब हो चुका वो नहीं खाते हैं. क्यों? खाना ख़राब है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है. बट क्या हम जो मेंटली खाना खा रहे हैं थॉट्स के थ्रू, वो क्या खा रहे हैं? यदि आप नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हो, यदि आप बहुत ही नेगेटिव चीज़ों को बस कंज्यूम करते जा रहे हो, सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके माइंड में वही थॉट्स दिन भर घूमेंगे, बिकॉज आपने वही कंज्यूम किया है. तो मुझे लगता है कि यदि आपने अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज किया, जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट करो जो इंस्पायरिंग चीज़ें हैं, स्टोरीज लोगों की, इन्वेंशंस क्या हुए, डिस्कवरीज क्या हुए, कैसे लोगों ने अपना गोल अचीव किया, जो बड़े थिंकर्स हुए, बिजनेसमैन हुए, उन्होंने कैसे सोचना स्टार्ट किया. यदि हमने उनकी चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो हमारी मेंटल एक्टिविटी चेंज होती है, हमारा माइंड का पैटर्न चेंज होता है. आई थिंक दैट इज़ वेयर आपका माइंड को जो लिमिट हो पुश होता है कि यार लोग ये कर चुके हैं, लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं. फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अर्ज आता है कि वो कर चुके तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, व्हाई एम आई सिटिंग लाइक दिस, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. और तभी जाके फिर आपके अंदर जब ये अर्ज आता है, आप चीज़ों को कंसीव करना स्टार्ट करते हो, आपकी माइंड खुलती है, वो बलून की तरह ऊपर जाती है, और वो आप इमेजिन करना स्टार्ट करते हो, जहाँ पे फिर आप अपने गोल्स को भी सेट करते हो, कुछ ड्रीम्स देखते हो, एंड देन यू स्टार्ट मे बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि यार मुझे ये चीज़ें लाइफ में क्रिएट करनी है. एंड देन anybody is doing a work, they're creating something, and what you get as a return in terms of money is what the market pays you for what you create. So if you create low value things, you get low value income for you. But if a creation is very high value, right, you demand a higher amount from the market, and the market pays for it, right? So I think consumption creation, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट होती है कंजम्पशन से, बिकॉज वहाँ पे ही आपके माइंड का कोर प्रोग्रामिंग चेंज होता है. एंड देन विजुलाइजेशन, like tools like visualization will help you to create something amazing mentally, and then mentally becomes physically as well. Wow.
ओके, व्हाट यू सेड, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, राइट, हमें नहीं पता कि हम जो सोच रहे हैं वो सच हो सकता है, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग unwantingly they manifest crisis situations in their life because they do not know that what they're thinking will become true, right? आपसे इनफैक्ट मैं जानना चाहूँगी that when you didn't know about this concept many years back, ऐसा कभी हुआ कि जब आपको नहीं पता था इस बारे में, आपने unknowingly कोई unwanted situation अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ली हो? देखो बहुत बार हुई है आई थिंक। You've always been a optimistic person. कभी नहीं, बहुत बार चीज़ें हुई है मिस्टेक, बिकॉज बचपन में काफ़ी ग्रो करते, अभी भी आज भी मिस्टेक बहुत बार होती है, बिकॉज आप जब ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हो आपके माइंड थोड़ा सी पावरफुल हो जाता है और समहाउ आप अवेयर नहीं होते हो और कुछ किसी नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो आप बहुत बार, जो कि वेरी कॉमन है, मुझे भी नेगेटिव थॉट्स बहुत आती हैं, तो यू आर बाउंड टू एंड अप गेटिंग समथिंग सम ऑफ दीस थिंग्स इन लाइफ, राइट। मुझे तो बचपन में स्कूल टाइम पे बहुत चीज़ें हुई थी जब हमें आइडिया भी नहीं था, और हम मेंटली हमारा जो माइंड था वो मोस्टली फेयर को इमेजिन करता था कि व्हाट इफ आई फेल, क्या होगा फिर, व्हाट इफ आई कम द लास्ट इन द क्लास, या कोई अच्छी मुझे कॉलेज नहीं मिलेगी, टीचर ने डांटा तो क्या होगा, फादर ने डांटा, वो चीज़ें हुई बहुत बार। आज जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं मेरा भी रोल था उन चीज़ों को क्रिएट करने का, बिकॉज मैंने मेंटली उसको इतना एनर्जी प्रोवाइड किया था, तो इट्स लाइक दिस, जैसे आप एक रूम में हो, वहाँ पे वाईफाई है, वहाँ पे इंटरनेट है, यदि आपको मालूम नहीं कि यहाँ पर वाईफाई वर्क करता है, तो आपका फ़ोन है पर आप वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे हो, गिफ्ट है आपके पास, वो वाईफाई का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। वंस यू बिकम अवेयर, तो आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो, और वो वाईफाई से फिर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हो। आई थिंक समझना कि यार मेरे अंदर एबिलिटीज़ क्या है, इट्स लाइक गेटिंग टू वाईफाई, एंड वंस यू बिकम अवेयर, आई थिंक बहुत हद तक आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो, और आप समझते हो कि हमारे पास जो भगवान ने, जो लाइफ ने हमें जो एबिलिटीज़ दी हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, और उसके सही यूसेज से हम चीज़ों को बहुत हद तक अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने करियर को, अपने ग्रोथ को। इनफैक्ट दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट किया और वो आई थिंक बहुत हाई लेवल पे पहुँचे। तो आई थिंक बहुत ही होता है। मुझे एक एग्जांपल याद है कि जैसे जब आई थिंक 2016 की बात है या 14 की बात है, जब हमने इंडिया वर्ल्ड कप मैच हारा था, उसमें एक स्लोगन था जो बहुत ही पॉपुलर था कि वी वोंट गिव इट बैक, एक टैगलाइन थी, बहुत फेमस थी, वी वोंट गिव इट बैक। तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि यार ये जो स्लोगन था वी वोंट गिव इट बैक, ये हम किस पे फोकस कर रहे थे जब हम कहते हैं वी वोंट गिव इट बैक? इट वाज रिकॉलिंग अस, इट वाज रिमाइंडिंग अस ऑफ अ टाइम व्हेन वी हैव गिवन इट बैक, राइट? कि यार मैंने लास्ट टाइम हारी, इस बार हम नहीं हारने वाले। फिर भी हमारा फोकस था नहीं हारने के ऊपर। हुआ क्या, लास्ट ओवर में आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का मैच था इंडिया के साथ, लास्ट ओवर में 3 बॉल पे उन्होंने 3 छक्का मारा, आई थिंक ब्रेथवेट जो बैट्समैन थे, और इंडिया मैच हार गई। तो आई थिंक कलेक्टिवली कहीं ना कहीं हमने उस स्लोगन को यूज़ किया और अपने रियलिटी को चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल इसका अपोजिट में है, जब वेस्ट इंडीज़ ने मैच जीता था, उनका एक टैगलाइन था, उनका एक सॉन्ग आया था, वी आर द चैम्पियन, दे वाज द चैम्पियन, गेल इज़ द चैम्पियन, बहुत फेमस था। और ना कि सिर्फ उनकी टीम गा रही थी, बाकी टीम्स के लोग, बाकी कंट्रीज़ के लोग भी इस गाने को इंडिया में बहुत लोगों ने यूज़ किया था, हर जगह प्ले हो रहा था गाना। तो किसी ने पूछा जीतने के बाद डॉन ब्रेवो से कि भाई ये गाना क्या है? तो उन्होंने बोला आप ऐसे हाथ उठाते हो। उन्होंने क्या बोला कि हमने ये सॉन्ग बिल्ड किया था अपनी टीम के लिए, जिसमें हम ये इमेजिन कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप को लिफ्ट कर रहे हैं, और वी शुड से दैट वी आर द चैम्पियन, गेल इज द चैम्पियन। एक्जैक्टली दैट मैनिफेस्टेड, एंड नॉट जस्ट दोज 11 प्लेयर्स बट कलेक्टिवली बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड ने जिन्होंने गाने पे गाया, फोकस किया, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस से, अपने इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए उस टीम को हेल्प किया मैच जीतने में, मुझे लगता है। सो आई थिंक दिस वर्क्स एट अ ग्लोबल स्केल, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली। हमारे माइंड के पास एबिलिटीज़ बहुत है, बहुत रिसर्च इसके ऊपर हुई है साइंस में, बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स ने बात की इसके ऊपर है। तो या इट इज़ देयर, दैट्स हाउ इट इज़। Wow. But one of the main things when it comes to visualization, what I have read so far is you also need to feel that emotion. Like whatever I am thinking and imagining about, उसके पीछे बहुत हद तक सिर्फ मेरी थॉट नहीं, मतलब मुझे मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसका वर्ड विजुअलाइजेशन है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो मैंने इमेजिन करा और वो हो जाएगा। हालांकि उसके पीछे आई थिंक आपकी पूरा का पूरा आपका बॉडी एनर्जी, आपका हार्ट सेट सब काम करता है, राइट? सो टू बी एबल टू फील समथिंग दैट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड, राइट, और मे बी टू deliberately make myself experience it,
isn't that being dishonest to it? मतलब, doesn't that defeat the entire purpose because you have to be authentic in that process? राइट इम्पॉर्टेंट है। देखो, पर ये हमें समझना है कि हम इसको थोड़ा डीपर में समझे कि इमोशंस का बहुत रोल है, राइट। जो हम इमोशंस फील करते हैं वो सिर्फ हमारे बॉडी में केमिकल नहीं है, वो इमोशन एक एनर्जी की तरह वर्क करती है। इसलिए कहते हैं इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। आपकी एनर्जी मूव कर रही है। यदि आप वो इमोशन फील नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ ग्रैटिट्यूड, विच इज़ लव, विच इज़ जॉय, विच इज़ हैप्पीनेस, तो क्या होता है कि आप उस गोल के लिए, उस विजुलाइजेशन के लिए आप एनर्जी बिल्ड नहीं कर पाते हो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट। इसको हमें साइंस की तरह समझना है कि यदि वो मेरा आउटकम, मेरा विजुलाइजेशन एक सीड है, तो जो इमोशन है वो एक फर्टिलाइजर है, वो सीड को फर्टिलाइज करता है उसको मैनिफेस्ट करने में। नाउ बात सही है कि गोल है, गोल हुआ नहीं है, कैसे मैं उसको हैप्पीनेस फील करूं, बट हमें समझना है कि हम नॉर्मली क्या हमने लाइफ में हैप्पीनेस फील किया है, तो हमने नॉर्मली फील किया है, बहुत जगह पे किया है, जॉय फील किया, ग्रेटिट्यूड फील किया है, तो ये इमोशन हमने फील किया है, क्योंकि हमारे पे फॉरेन इमोशंस नहीं है, ये इमोशंस हैं। यदि आप ये अपने विजुलाइजेशन को अचीव करते हो, अपने गोल को अचीव कर लेते हो, उसके बाद वो क्या इमोशन फील होगा, उसके बाद आपको जो इमोशन फील होगा वो भी यही इमोशन है, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। तो इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ इमोशन इज द सेम, विद द इंटेंसिटी में चेंज, बट इट्स द सेम इमोशन, राइट। तो क्या मैं अपने पहले के इमोशन को रिकॉल करके हैप्पीनेस को, और क्या मैं इस विजुलाइजेशन को तब लिंक कर सकता हूँ जहाँ पे कि मैं उस इमोशन को, आई नो हाउ टू फील दैट इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, राइट, मैंने बहुत बार फील किया है, तो क्या मैं उस गोल को इमेजिन करके ये इमोशन ला सकता हूँ? बिकॉज जब ये गोल अचीव होगा तो वही इमोशन मुझे फील होने वाला है, हाँ ना। तो और वो इमोशन मेरे पास है, मेरे माइंड में स्टोर्ड है, मेरे माइंड में इतनी सारी मेमोरीज लाइफ की हैं, जो मैं एक्टिवेट करूँ तो इमोशन रिलीज होगा। तो आई थिंक यदि हमने इसको इस वे में लिया कि वो मुझे इमोशन एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज जो हमारा माइंड का एक सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, जो रियलिटी और इमेजिनेशन को समझ नहीं पाता है, और यदि आप किसी इमेजिनेशन को एज अ बहुत अच्छे से इमेजिन करते हो विद इमोशन अटैच्ड, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है, जो जहाँ से एक मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग विच जो आपके हैबिट्स को, आपके बिहेवियर को, आपके एक्शंस को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो आई थिंक सबकॉन्शियस में उस बीज को बोना और वो इमोशन से फर्टिलाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उस चीज़ को करने के लिए। तो इस समय यदि हमने चीज़ों को देखा तो आई थिंक इमोशन फील करना ईजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। Any biggest client success story that you remember? That person was not able to do this and how he or she tried. One of my, many stories of people, right? One of my, मतलब, I think हर cities में stories हुए लोगों के। One of my client in US, जहाँ पे वो लोग business start कर रहे थे, and I think from a struggling phase, zero income, in a year, I think जब उन्होंने start किया, within a year, they have reached to some $45,000 annual income, right from the scratch. Another client हमारे मुंबई में जो उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, पहले 3-4 महीने कोई रिजल्ट उनको नहीं आए, एंड ही वाज सैड। उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आए। और मैंने बोला आप प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज बहुत बार टाइम लगता है चीज़ों में, बहुत बार हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। और आई थिंक उसके बाद उनकी रिजल्ट आई, सडनली एक दिन उनके पास किसी का कॉल आया, एक फ्रेंड का, और बातें हुई। ही वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ही गॉट अ ऑफर टू वर्क विद one of the India's top cricketer as his personal brand manager, Wow. तो 4 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, suddenly one day में everything changed, right? Then we have participants जिनके जो business में थे, बहुत struggling phase में थे उनके life में, हर एक चीज़ में struggle था। और when he joined the batch, उन्होंने workshop किया, समझा चीज़ों को, learn किया, and within 6 to 8 months, I think he's an entrepreneur in Pune. 8 months में he end up increasing his income by revenue by 10 times, उनकी रिलेशनशिप चेंज हुई, हेल्थ चेंज हुआ, बिजनेस ग्रोथ हुआ। तो आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोगों ने बहुत ही सीमिंगली डिफिकल्ट सिचुएशन से स्टार्ट किया था, और अगले कुछ महीनों में, 1-2 साल में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मतलब आपको मैं दे सकता हूँ कि लोगों ने प्रैक्टिस किया और रिजल्ट आए। Interesting. So the kind of massive shifts जो आपने अपने clients के लिए करी है, and why am I asking is because I know that you're a highly spiritual person as well, right? जब आपके पास वो पावर आ जाती है, wherein you know that I have the capacity to make such dynamic transformation in people's lives, कभी ऐसा लगता है that it goes to your head and
because it's human. Mm. But I know that you're spiritual also, right? How do you balance that out? I think बहुत important है because when people come and tell you that कि आपने मेरा life change कर दिया, I'm a fan of you and all of this, तो automatically कहीं ना कहीं वो ego and It's pride, high. It's a very right. big high. तो एक वो ego and pride आता है, no doubt about it. I think और वहाँ पे ही आपका टेस्ट आता है कि आप कैसे उस ego जो build हो रही है, जो pride build हो रही है, उसको आप रेगुलेट करो, उसको आप उसके लिए अवेयर आप हो, राइट. बहुत बार आपको लोग भी रिमाइंड करते हैं, बहुत सी चीज़ें रिमाइंड करती हैं. तो आई थिंक अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं तो डिफिकल्ट चीज़ें भी टर्न अप करती हैं. एब्सोल्युटली. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? आप अगर इसको कम शब्दों में बताना चाहें. आई थिंक फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज गुडनेस इन एक्शन. Wow. Yeah, I think if you can be good in your thoughts, good in your emotions, good in your words, and good in your actions, I think that's spirituality. Like I think the more you become spiritual, the more kind you are, the more strong you become, the more faith you have, the more conviction you have for yourself, and then you go for bigger goals in life. So spirituality is not that you leave everything. आप बैठ गए हिमालय पे और जस्ट आप मेडिटेशन कर रहे हो. बहुत लोग चूज करते हैं वैसा, विच इज़ ऑल राइट, नथिंग बैड अबाउट इट. बट आई थिंक यदि आप स्पिरिचुअल हो तो यू विल बी आउट देयर टू हेल्प पीपल. आप लोगों के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, आप कुछ ना कुछ कॉज करते हो जिससे आपके प्रेजेंस से चीज़ों का लोगों का लाइफ इंप्रूव होता है. तो आई थिंक इफ़ यू आर गुड पर्सन इन एक्शन, not just in thoughts but in action, I think you're a spiritual person. So that is one of the things which I feel is spirituality. This reminded me of a very famous quote which said that detachment is not that I own nothing. Detachment is that nothing owns me. And when I heard it, I was like, this makes ultimate sense, right? So why, your journey has been so interesting because you were like somewhere subconscious and spirituality. And most of the people, they think that they're at the polar ends, right? कि subconscious and spiritual एक है, पूरा science एक है, we are talking about everything under that, right? So how much do you think spirituality is subconscious and how much of subconscious brain is spiritual according to you? I think जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं अब हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मौजूद है, हमारे अंदर दोनों चीज़ मौजूद है, फिजिकल एस्पेक्ट भी, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट भी और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी. मटेरियलिस्टिक क्या है? हमारा बॉडी है, हमारा इमोशंस है, हमारा माइंड है. बॉडी को खाना चाहिए, माइंड में थॉट्स आती हैं, कैसे हम चीज़ें बिल्ड करनी है, क्या करना है, हमें इमोशन फील होता है. ये फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट हो गया लाइफ का. बट जो हमारे अंदर जो हायर एस्पेक्ट है, जो हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, सोल, स्पिरिट जो हम कहते हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ गया, राइट. तो आई थिंक जो स्पिरिट है, जो फिजिकल नहीं है, जो इनविजिबल है, जो एनर्जेटिक एस्पेक्ट है, जो कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट है, उसको फिजिकली इस दुनिया में वर्क करने के लिए फिजिकल एस्पेक्ट ज़रूरत है. आपको बॉडी चाहिए इस दुनिया में एज अ सोल एग्जिस्ट करने के लिए. आप यदि आपकी बॉडी नहीं है तो आप जिंदा नहीं हो. आप सोल हो, आप अलाइव हो, बट फिजिकली इस दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो. तो आई थिंक ये बहुत ही, इट्स लाइक अदर साइड ऑफ द कॉइन. ये दोनों कॉइन के अलग अलग हिस्से हैं कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, जब हम सोल एज अ सोल जब हम बॉडी यूज़ करते हैं तो माइंड के थ्रू ही इन चीज़ों को याद रखते हैं और चीज़ों को करते हैं, राइट. So it's basically just a channel for spirituality to exist. Yes. और फिजिकल बॉडी को यूज़ करके हम चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, जो हमें हमारे सोल को इवॉल्व करता है. तो आई थिंक ये बहुत ही ना, वो जैसे कप और पानी है, तो कप हो गया आपका फिजिकल एस्पेक्ट, पानी हो गया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. Container and वाटर, तो विदाउट कंटेनर द वाटर विल नॉट एग्जिस्ट, वो फैल जाएगा, राइट. एंड विदाउट वाटर द कंटेनर इज एम्प्टी, देयर इज नो यूज ऑफ कंटेनर, राइट, द कप, राइट. सो आई थिंक इट्स अ वेरी intertwined kind of process in reality. Yeah. What is your favorite spiritual practice? Obviously meditation is one important, but I think doing a random act of kindness, I think I love that, doing something for somebody and they don't even know that I have done this for that person, it might be offering food to somebody without even telling them in a flight, or maybe paying the bill for someone on their behalf on a toll plaza, So I think doing random act of kindness, sometimes it can be known to people, sometimes it may not be. I think that gives me a lot of fulfillment. Apart from it, I think meditation, where I try to experience the higher consciousness, the higher dimensions, higher reality, because there is a part within us which has the ability to connect to the higher dimension. I think when we do make that connection, there is a great sense of fulfillment which comes down. So I think for me, those couple of things are very, very powerful, yeah. Wow.
Okay, one question that I particularly want to ask for all our curious and logical minds, because we've spoken so much about visualization, इसका साइंस क्या है? पहले तो इसके पीछे कोई साइंस है, और है तो what's the science behind? एब्सोल्युटली साइंसेस के पीछे बहुत ही पावरफुल साइंस है जो अब रिसर्च बता रही है हमें. सो 2-3 लेवल पे साइंस हम बात करते हैं. पहला तो हमें समझना है कि जो हमारा ब्रेन है, पहले जो अंडरस्टैंडिंग था ब्रेन का कि हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड है. एक बार वो ब्रेन आपका डेवलप हो गया 20-22 साल तक, वो चेंज नहीं हो सकता है. लाइक लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ हार्ड वायर्ड थिंग, विच वॉज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग. जो रिसर्च बताता है हमें कि हमारा ब्रेन इज प्लास्टिक, समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, which means कि आपका ब्रेन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है. इट इज़ रिवायरिंग इटसेल्फ, इट इज़ चेंजिंग, इट्स अडैप्टिंग इन रियल टाइम. सो जो हमारे ब्रेन में फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ब्रेन के, जो हम जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, राइट. तो जो सेल्स में कनेक्शन होता है, इनफैक्ट हमारे ब्रेन में अराउंड 86 बिलियन सेल्स होते हैं, और हर एक सेल एक टाइम पे 10,000 सेल से कनेक्ट कर सकता है. और ये जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, कौन सा सेल किस सेल से कनेक्ट करता है, वो डिटरमाइन करता है कि हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा आइज़ कहाँ जा रहा है. तो हर एक हमारा जो एक्टिविटी है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ब्रेन में एक सेल उसके पीछे काम कर रहा है, एक न्यूरल सर्किट काम कर रही है. अब विजुलाइजेशन क्या करता है कि हमारा ब्रेन इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि रियल क्या है, इमेजिनेशन क्या है. तो यदि आप कोई एक्टिविटी करते हो, आप किसी को देख रहे हो, आप एक ऑरेंज देख रहे हो, आपके ब्रेन में एक सेल एक्टिवेट हुआ जो ऑरेंज रिप्रेजेंट कर रहा है. यदि आप सिर्फ इमेजिन करते हो ऑरेंज को, वही सेम सेल एक्टिवेट होता है ब्रेन में जो फिजिकली होता है ऑरेंज देखने के ऊपर. मतलब जो विजुलाइजेशन है वो आपके ब्रेन को आईज क्लोज करके आप उस विजुलाइजेशन के थ्रू अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो. रिवायर फॉर व्हाट? टू फील मोर कॉन्फिडेंट. रिवायर फॉर व्हाट? टू अचीव सर्टेन गोल्स. तो विजुलाइजेशन इज अ टूल जो आपके ब्रेन को चेंज करने में, अपग्रेड करने में, रिवायर करने में हेल्प करता है. तो दैट्स वन ऑफ द साइंस ऑफ विजुलाइजेशन, नंबर 1. नंबर 2, यदि हम जब फ्यूचर की बात करते हैं, जो हमारा फ्यूचर है, तो जब हम आज जो हम लाइफ जी रहे हैं, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, नाउ ये हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट है क्योंकि हमने इस लाइफ को जिया है. हमारे ब्रेन में मेमोरीज रिकॉर्ड उसकी प्रेजेंट है, राइट. पर यदि हमने लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल देखा है और सिर्फ डिफिकल्टीज देखी है, कभी हमने अबंडेंस एंड जॉय नहीं देखा है, तो कभी हमें उसका एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं. पर यदि हम विजुलाइज करते हैं कि व्हाट इफ आई लिव दिस लाइफ, तो क्या होगा, व्हाट इफ मैंने ये अचीव किया तो क्या होगा. तो जब मैं वो फ्यूचर इमेजिन कर रहा हूँ थ्रू विजुलाइजेशन, इन माई ब्रेन आई एम क्रिएटिंग अ पाथवे. मैं एक सर्किट ले डाउन कर रहा हूँ जो मेरे ब्रेन के लिए एक ट्रू सर्किट है, एक रियल सर्किट है, एक ब्रेन का नेटवर्क जो बन रहा है, जो मेरे लिए गाइड बन जाता है उस आउटकम को अचीव करें, राइट. तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव आता है ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर. तीसरा ये होता है कि बहुत बार जब हम कुछ स्किल्स को लर्न करते हैं, हम जब कोई चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, एक तो आप फिजिकली जाके प्रैक्टिस करते हो, राइट. तो एक साइंस में एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं हेप्स लॉ. वो क्या कहता है कि आप व्हेन द सेल्स फायर टुगेदर इट वायर्स टुगेदर. जो भी सेल साथ में फायर करती है ब्रेन में, वो साथ में वायर करती है. तो ऐसे बहुत रिसर्च हुई इसमें. जो टीम्स थी उन्होंने प्रैक्टिस किया, उनका गेम इम्प्रूव हुआ. जिस टीम ने मेंटली प्रैक्टिस किया, फिजिकली नहीं प्रैक्टिस किया, उनका भी ऑलमोस्ट सेम इंप्रूवमेंट आया जिस गेम ने फिजिकली प्रैक्टिस की थी. बास्केटबॉल की टीम थी. तो आई थिंक विजुलाइजेशन का बहुत ही पावरफुल साइंस है. यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को फिजिकल प्रैक्टिस के साथ मर्ज कर दिया, it's a recipe of greatness. It's a recipe of becoming the best in whatever field you are. You are a creative entrepreneur. You can generate ideas. You can bring conviction. You can tap your subconscious mind. हमारा ब्रेन में एक हिस्सा होता है, RAS कहते हैं उसको हम. Through visualization, when you imagine things, आप उस ब्रेन के पार्ट को प्रोग्राम करते हो कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ. And then your mind starts scanning the world outside to help you find those things. इसलिए जब आप कुछ चीज़ों का आंसर ढूंढ रहे हो, you get the answer. You find the answer somewhere in a book, किसी इंसान के पास, right? तो आई थिंक बहुत अधिक साइंस है इसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर, विजुलाइजेशन का. एंड टॉप के लोग दुनिया में जो बेस्ट लोग हैं, क्रिएटिव पीपल हैं, जो लोग दुनिया को चेंज कर रहे हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एथलीट्स हैं, बिजनेस पीपल हैं, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, सबकी कहानियाँ सुनोगे आप. जो लोग टॉप पे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं विजुलाइजेशन को एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ बिल्ड किया था. इट इज़ दैट पावरफुल. Yeah, it makes so much more sense because now when you were talking, would just strike, yeah, there was a particular thing that I wanted to buy, and because I had seen the image
few days back, I was traveling and I saw someone carrying the same thing, and I was like, "Arey, this is from that brand." I'm sure so many people would have had it, but suddenly वो चीज़ एकदम आपके surface level पे आ जाती है, where you can see it. True, absolutely. Right? So beautiful. So we are almost towards the end of the podcast. Just a couple of quick questions that I'd like to know from you. Right? One is that what is Coach Avinash Anand Singh visualizing right now, and then how much time? Okay, so I think one of the visualization which I have for a long time, which is kind of almost a daily process, is to reach the goal I have, a vision, which is to impact 1 billion people, 1 billion people by 2030. Through our work, it might be workshops, it might be books, it might be documentaries, many ways, right? So I think that is one thing which I think I almost every day remind myself, that is the vision, right? How it will happen, I do not know. Though I'm on the road walking the path, I think nature will open a lot of doors as we go ahead. But that is one, I think, which is actively in my visualization. Yeah. Right. One, and this is just for fun. Yeah. Okay. One very prominent personality that you would like to coach for creative visualization. I think coaching our cricket team, Indian cricket team, I think, though some of them obviously practice a lot, I think it's not still a major part of their training. I think I would love to, and it's one of my goals as well, that, I can coach them as well, some of them, because I think mental जो गेम है आपका, जो आपकी mental superiority आती है अदर टीम के सामने, वो आई थिंक उसके लिए आपको माइंड को ट्रेन करना है, नॉट जस्ट सिर्फ आपको स्किल फिजिकली डेवलप करना है. सो आई थिंक कोचिंग आवर क्रिकेट टीम, बिकॉज क्रिकेट इज क्लोज टू माई हार्ट, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ थिंग्स व्हिच आई रियली वांट टू do and achieve and manifest very fast. Right. And how do you see yourself spiritually? Like, where is your evolution point? I think the future is you become more kind, more compassionate, more humble. You become more loving, more forgiving, and you become a more grounded person to the roots, to Mother Earth, and to closer to God. I think that's what I want to be as I move forward. Yeah. Sure. Okay. And any last words for our audience that you... I think, आपका जो life है वो सिर्फ आपको plan नहीं करना है, आपको सिर्फ live नहीं करना है, आपको life create करना है. I think हमारा सबसे जो fundamental gift है, it is the gift of creation. और ये क्रिएशन बहुत लेवल पे होता है, मेंटल क्रिएशन होता है, इमोशनल होता है, वर्ड से होता है और फिजिकली होता है. तो जो आप लाइफ जी रहे हो, इमेजिन अ ग्रेट लाइफ फॉर योरसेल्फ इन ऑल रिस्पेक्ट, चाहे जितना भी पास्ट में फेलियर मिला हो आपको. लर्न द साइंस ऑफ विजुलाइजेशन, साइंस ऑफ माइंड, लर्न हाउ टू यूज दीज टूल्स प्रॉपरली, उसको आप समझो और एक ग्रेट विजन बना के आप जी जान लगाओ उस चीज़ के लिए मूव करने के लिए. बिकॉज यदि आपने पूरा एफर्ट लगाया और चीज़ें नहीं भी हुई, आप फुलफिल्ड हो गए बिकॉज कि मैंने पूरा एफर्ट लगाया. पर यदि हमने एफर्ट ही नहीं लगाया उस चीज़ की तरफ, गोल ही नहीं था हमारे पास, तो आई थिंक दैट्स अ फेलियर. जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपका हार्ट कॉलिंग है, सबका अलग हो सकता है, पर उस हार्ट कॉलिंग के पीछे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए उसको अचीव करना, उसको फिजिकल रियलिटी में लेके आना इज़ अ चैलेंज, बट इट्स पावरफुल, इट्स फुलफिलिंग. नाउ Wow, I mean, this has been one of the most profound conversations I've had so far. So thank you so much, Avinash. And इस पूरी conversation में आपने मुझे इतने सारे hints, इतना मुझे flashback में लेके गए और इतनी वो चीज़ें अब जाके it's like I was able to connect the dots. सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि if I have to lose weight, I can literally do it by mentally practicing it. I don't even have to go to the gym. And just to add my insight on this, that आपने जो weight loss की बात बोली, obviously ये weight loss पे work करता है. I have many results of people जिन्होंने visualize किया था एक healthy figure और healthy body और वो चीज़ हुई. पर साथ ही साथ यदि आपने ये भी visualize किया कि आप right choices बना रहे हो खाने के ऊपर, आप देख रहे हो आप फिजिकली जिम जा रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, आप फिजिकली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, योगा वर्कआउट कर रहे हो, तो आई थिंक पूरा प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव बन जाता है. बिकॉज फिजिकल चीज़ों का अपना बेनिफिट है, आप प्रॉपर खाना खाते हो उसका अपना बेनिफिट है, आप मूव करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसका अपना बेनिफिट है. तो आई थिंक विजुलाइजेशन कंबाइन विद फिजिकल प्रैक्टिसेस, राइट फूड एंड द फिजिकल एफर्ट यू पुट इन, आई थिंक दोनों चीज़ मिल के एब्सोल्युटली रिजल्ट्स आर फिनोमिनल.
So that is like one of the things I want. 100%. This was all in good humor. And in fact, I would like to tell the audience also, this was all in good humor. इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्कआउट नहीं करो और आप अच्छा खाना नहीं खाओ. प्लीज हमें कमेंट्स में मत बोला कि मेरा वजन कम नहीं हुआ ये करके. This is what he meant, that when you combine your imagination with your hard work and with your actions, you will see explosive results. So a big thank you to you for giving this, nuggets of wisdom with all of us. And thank you so much for being here, being the first guest. And we really hope that we'll call you again and do like a second season on that. So thank you so much, Avinash, for this. And to all our audience sitting at home in the comfort of your homes, we are bringing you such perspectives. We are bringing you more such people. So if you want to learn more of such concepts and want to understand more of such technicalities and, such learnings, please, I will be very typical over here, but please like and subscribe our channel. Agar aapko ye conversation pasand aaye, please do share it. And keep watching out this space, because we are bringing more of such interesting podcasts. Thank you.